नमस्कार, आपका स्वागत है इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। चेक गणराज्य के पीएम ने निम्स का दौरा किया, पेट्रो फियाला का स्वागत किया। निम्स के चेयरमैन ने डॉक्टर बीएस तोमर ने पेट्रो फियाला का स्वागत किया। पीएम पेट्रो फियाला को सम्मानित भी किया गया। अपने संबोधन में पेट्रो फियाला ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में निम्स का बड़ा योगदान है। मेडिकल साइंस का काम जीवन को बेहतर बनाना है। स्वास्थ्य क्षेत्र विकास की ओर अग्रणी है, ये पेट्रो फियाला ने इस दौरान कहा। निम्स यूनिवर्सिटी में चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री आज पहुंचे। इस दौरान ग्लोबल यूनिवर्सिटी की आधारशिला यहां पर रखी गई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में निम्स बड़ा योगदान कर रहा है, ये पेट्रो फियाला ने साफ तौर पर कह दिया। चेक रिपब्लिक और निम्स यूनिवर्सिटी के साझेदारी से काफी कुछ किया जा सकता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और ये जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी जिसकी आधारशिला रखी गई है, ये आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबरनेटिक्स और मेडिकल की क्षेत्र में काफी कुछ कर सकती है। इससे युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी, उन्हें कई मौके प्राप्त होंगे। इस इवेंट में पीएम पेट्रो फियाला ने भी संबोधन किया और साथ ही साथ निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर बीएस तोमर ने उनका शुक्रिया अदा किया। दोनों देशों के लिहाज से भी ये जो कदम उठाया गया है, ये काफी महत्वपूर्ण है। और चेक रिपब्लिक के सहयोग से निम्स में ये जो यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है, जो इंस्टीट्यूट बनाया गया है, ये काफी पॉपुलर रहेगा। मैरिक इंस्टीट्यूट का भी दौरा किया प्रधानमंत्री पेट्रो फियाला ने। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान पेट्रो फियाला को सम्मानित भी किया गया। न्यूज इंडिया से उन्होंने अपने एक्सपीरियंस भी साझा किए। और डॉक्टर बीएस तोमर ने निम्स यूनिवर्सिटी में चेक रिपब्लिक के पीएम पेट्रो फियाला का स्वागत किया और पेट्रो फियाला के दौरे को ऐतिहासिक बताया और निम्स यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी दी। इस दौरान डॉक्टर बीएस तोमर ने दोनों देशों के बीच हुई साझेदारी का जिक्र किया। As we conclude this special ceremony, let's celebrate the achievement of not only Professor Peter Fiala, but also the spirit of excellence that he embodies. We are privileged to have witnessed this historical event, which serves as a beacon of hope and inspiration for all of us. On behalf of NIMS University and all those present here today, I extend my heartiest congratulations to you, sir, Your Excellency Peter Fiala. May this award serve as a reminder of the immense impact you have had on our world and the immense potential that lies within each and every one of us. Thank you. This prestigious recognition is a testament to his extraordinary contributions and unwavering commitment to the betterment of society. Our esteemed honoree has not only excelled in his academic pursuits, but has also served as an exceptional leader, guiding his country towards advancement in education and research. His commitment to the advancement of higher education is truly commendable, and we are grateful for his contribution to the global academic community. Professor Peter Fiala achievements resonate with the vision and value of NIMS University, which includes fostering an environment of innovation, inclusivity, and promoting excellence in education. Your Excellency, it is an honor to have you amidst us today. Your presence here reflects the importance you place on education and the remarkable strides the Czech Republic has made in this field.
As Chancellor of the NIMS University, I stand here before you, humble and proud to represent an institution dedicated to excellence in education and research. In this short span of time, I would like to take a moment of highlight the remarkable achievement of NIMS University and the shared value that unite us with the Czech Republic. Our university nestles amidst the vibrant culture and heritage of Rajasthan stands tall as a beacon of knowledge and innovation. Your Excellency, it is an honor to have you amidst us today. Your presence here reflects the importance you place on education and the remarkable strides the Czech Republic has made in this field. As a Chancellor of the NIMS University, I stand here before you, humble and proud to represent an institution dedicated to excellence in education and research. In this short span of time, I would like to take a moment of highlight the remarkable achievement of NIMS University and the shared value that unite us with the Czech Republic. Our university nestles amidst the vibrant culture and heritage of Rajasthan stands tall as a beacon of knowledge and innovation. Your NIMS University has become a center of excellence, offering a diverse range of programs that cater to both national and international students. NIMS University takes immense pride in its diverse community of students and faculty members who come from various corners of the world. Our institution has always believed in creating a global learning environment that encourages cross-cultural exchange and cooperation. Your Excellency, your visit further validates our efforts in this direction. Your Excellency, it is indeed a testament to our vision and leadership that the Czech Republic has earned a reputation as a global leader in education. Through your unwavering commitment to education reforms and fostering a knowledge-based economy, you have paved the way for the Czech Republic to become a hub for research and technological advancement. We at NIMS University admire the strides you have made and hope to further strengthen our ties through meaningful collaborations in the field of education, research, and innovation. As we celebrate your visit, I would like to extend my gratitude to the Czech Republic for its invaluable contribution to the field of science, art, and culture. Your country has gifted the world with outstanding thinkers, writers, musicians, leaving an indelible mark on our collective human heritage. Your Excellency, as you step foot on the ground of NIMS University, I am reminded of a quote by Václav Havel, the renowned Czech statesman and playwright, who said, "The deeper the experience of an absence of meaning, in the other words, of absurdity, the more energetically meaning is sought." Today, let's seek meaning in the bonds we forge, the knowledge we share, and the exchanges we foster. Let us embrace this occasion as an opportunity to further strengthen the ties between our nations and work together towards a brighter future for our youth. At the last but not the least, I express my heartfelt gratitude to His Excellency Petr Fiala, the Honorable Prime Minister of Czech Republic, for gracing us with his presence today. और निम्स यूनिवर्सिटी पहुंचे पेट्रो फियाला ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। Kind introduction. I am honored by the decision of the NIMS University to grant me an honorary doctorate. On the personal level, I see this recognition as one of the biggest honors possible. I have the highest respect for learning. I believe that knowledge brings people light, a light to find the right way from darkness and
manage any crisis. I have spent most of my life in academia and institutions of knowledge. I was the first professor of political science in the Czech Republic, and I was the Minister of Education. But the most important was probably my role as rector of Masaryk University, my alma mater between 2004 and 2011. I have great. खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया है प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। सोनिया गांधी खड़गे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। अधीर रंजन चौधरी भी अयोध्या नहीं जाएंगे। आरएसएस का कार्यक्रम बताकर निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है कांग्रेस ने, और कांग्रेस के न्योते को अस्वीकार करने पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। कांग्रेस को राम के अस्तित्व पर विश्वास नहीं है, ये बीजेपी ने पलटवार किया है। आपको बताएं कि कांग्रेस को न्योता भेजा गया था, सोनिया गांधी को, खड़गे को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने के लिए न्योता भेजा गया था। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने इस न्योते को अस्वीकार कर दिया है। अयोध्या नहीं जाएंगे सोनिया गांधी, खड़गे, साथ ही साथ अधीर रंजन चौधरी भी अयोध्या नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने कहा है कि ये आरएसएस का कार्यक्रम है, इसीलिए हम इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद बीजेपी ने आड़े हाथों लिया है कांग्रेस को और कहा है कि राम के अस्तित्व पर विश्वास नहीं है कांग्रेस को, इसी वजह से वो 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जा रही है। आपको बताएं कि कांग्रेस के इस फैसले के बाद साधु संतों में भी काफी रोष है। कल न्यूज इंडिया पर कार्यक्रम के दौरान भी तमाम साधु संत यहां पर इकट्ठा हुए थे। धर्मगुरु मौजूद थे जिन्होंने नाराजगी जाहिर की थी कांग्रेस की इस प्रतिक्रिया पर, जिस तरह से कांग्रेस ने इसे एक पॉलिटिकल एजेंडा बताया है, आरएसएस का कार्यक्रम बताया है और अस्वीकार कर दिया है, कह दिया है कि अयोध्या नहीं जाएंगे। इसके बाद बीजेपी ने आड़े हाथों लिया है। बीजेपी ने कहा है कि राम के अस्तित्व पर विश्वास ही नहीं है कांग्रेस को। लोगों की आस्था से जुड़ा है राम मंदिर का मुद्दा। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को और कांग्रेस ने कह दिया है कि वो इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, अस्वीकार कर दिया है प्राण प्रतिष्ठा के इस न्योते को। जिसके बाद बीजेपी ने आड़े हाथों लिया है, तंज कसा है और कहा है कि राम नाम पर कांग्रेस को विश्वास ही नहीं है। कांग्रेस इस पूरे कार्यक्रम को आरएसएस का एजेंडा बता रही है। वो कह रही है कि बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनावों में राम मंदिर के मसले को एक बार फिर से भुनाना चाहती है, इसी के नाम पर वोट बटोरना चाहती है, इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कराया जा रहा है जनवरी में। लेकिन बीजेपी का कहना है कि राम नाम पर विश्वास नहीं है कांग्रेस को, इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को अस्वीकार कर दिया है। अयोध्या नहीं जाएंगे सोनिया गांधी और खड़गे। अधीर रंजन चौधरी भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसे लेकर न्योता भेजा गया था कांग्रेस को और इस कार्यक्रम को लेकर पूरे देश में हर्षोल्लास है। लोग अपने अपने तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। 16 से लेकर 22 जनवरी तक पूजा का कार्यक्रम है, यानी कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उससे कई दिन पहले से पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। और कितने उत्साहित हैं तमाम लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से अस्वीकार किया है इस न्योते को, उसे लेकर कहीं ना कहीं साधु संतों में तो रोष है ही, आम लोग तो उनमें रोष है ही, लेकिन बीजेपी ने यहां पर पलटवार किया है। बीजेपी ने कह दिया है कि राम नाम में कांग्रेस का विश्वास ही नहीं है, इसीलिए ठुकरा दिया है इस प्रस्ताव को। कांग्रेस इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रही है, ये आरोप बीजेपी ने लगाया है और इसीलिए वो अयोध्या नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस का अब तक का जो चरित्र रहा है उसका ये पुनः उद्धरण है। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से भगवान राम को काल्पनिक बताया, भगवान राम के अयोध्या में मंदिर निर्माण पर लगातार रोड़े अटकाए,
तो ये उनका वास्तविक चेहरा फिर से उजागर हुआ है। वैसे भी राम को श्रद्धा की दृष्टि से कांग्रेस ने कभी भी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि ये तो काल्पनिक है और रामचरितमानस भी काल्पनिक है और इसलिए उनके लिए भगवान राम आस्था का केंद्र नहीं है। और ये देश की जनभावनाओं का भी अपमान है और मैं समझता हूँ जनता इसका जवाब कांग्रेस को आने वाले चुनाव में भी देगी। कांग्रेस पार्टी अगर नहीं समझती है ये कोई संघ का कार्यक्रम है, ये तो राष्ट्र का कार्यक्रम है, पूरी दुनिया इसकी प्रतीक्षा कर रही है, सभी आस्थाओं के लोग सम्मान कर रहे हैं कि प्रभु राम विराजमान हो रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी का इतना छोटा दिल है तो इतना ही कहूंगा, प्रभु कांग्रेस को सद्बुद्धि दे। कि श्री राम जन्मभूमि केस में जो बाबरी मस्जिद पक्ष के पक्षकार इकबाल अंसारी थे, उनको इनवाइट किया गया है। यह हिंदू धर्म की महान उदारता के परंपरा के अनुरूप है। गोली चलाने वालों को भी इनवाइट किया गया। बताइए, वो आने को तैयार हैं जो मुख्य पक्षकार थे। इस प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करके कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की परंपरा, कांग्रेस गोत्र के जितने दल हैं, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो राजनीतिक दृष्टि से निष्प्राण तो होते ही जा रहे थे, अब उनकी प्रतिष्ठा भी समाप्त हो गई। श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आपके मन में जो भी ईर्ष्या है, द्वेष है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसको लेकर आप भारत के विरोध तक चले जाते थे, आज भगवान के विरोध तक चले गए। देखिए, राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। राम मंदिर को भाजपा का समझ लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को बीजेपी का मानना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का मान लेना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है। आज मेरा दिल टूट गया है और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। नहीं, सब लोग विरोध करेंगे क्योंकि निमंत्रण कोई भाजपा ने नहीं दिया है, सरकार ने नहीं दिया है, उसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दिया है और उसे नकारना निश्चित तौर से यह रामद्रोही जो उनका आचरण है वो प्रकट हो जाता है। भगवान राम को काल्पनिक वो पहले ही बता चुके थे। अब रामलला जब भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं तब ऐसा उनका निर्णय निश्चित तौर से विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं तो सीधे तौर पे मानता हूं कि इतना दुर्भाग्यपूर्ण क्षण होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के इर्द गिर्द भी आप राजनीति करेंगे। मेरे और मेरे राम के बीच में सीधा ताल्लुक। गांधी मंदिर जाकर के राम भक्त नहीं बनते थे, वो अवधारणा अंदर थी, इसलिए स्वर्ग गए, हे राम कहते हुए गए। आप हैं कौन? आपने ठेका ले रखा है कि जो आए वो हिंदू, जो ना आए। एक मेरे और मेरे ईश्वर के बीच में ये जो ठेकेदारी का कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम विकसित किया है ना, ये मैं समझता हूं हिंदू धर्म का भी कभी स्वभाव नहीं रहा है। देखिए, ये लोग सीजनल हिंदू हैं। जब इनको लगता है कि हमें वोट लेना है तो सॉफ्ट हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। और कांग्रेस पार्टी तो मैं नेहरू से लेकर के अब तक कोई अयोध्या नहीं गया है। नैतिक ताकत नहीं है, क्योंकि अयोध्या प्रभु श्री राम को कोर्ट में लटकाने भटकाने का काम तो कांग्रेस ने ही की है। तो इसकी नैतिक ताकत नहीं है कि अयोध्या में जाकर के प्रभु श्री राम को और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है न्यूज़ इंडिया पर।